So hello everyone, welcome back to our class of project management once again on your screen. So now we are going to discuss our next topic, that is tenders and contracts. Right? So are you all ready? Geared up? Let me know in the chat whether you are all ready for the lecture of tenders and contracts. So what do we mean by the term tenders? What do we mean by this term tenders? Tender. It is an official invitation for work or task to all the eligible contractors. Right, by which is published in newspaper, magazines, then we have the official website, and other social media platforms. So we don't take social media platforms as official. So till websites it's okay. So what is tender? Tender is basically an official invitation. Official invitation for work or task to all the eligible contractors. Now what do we mean by this term eligible contractors? So who are eligible contractors? Who are eligible contractors? So they are contractors who are eligible, who fulfill eligibility criteria. Eligibility criteria as per terms and conditions. As per terms and conditions mentioned in the tender document, right? So there is a tender document which is available in the official website of the company. The client who is releasing the tender for all the eligible contractors. So the eligible contractors will see the terms and conditions and the eligibility criteria, and if the contractor finds himself as eligible, fulfilling all the eligibility criteria written in the tender document, then that particular candidate or that particular firm will be an eligible contractor. So contractors who fulfill eligibility criteria as per terms and conditions mentioned in the tender document, they are known as eligible contractor. Now what happens that once
the contractor is finalized. Okay, let's say 10 contractors has involved into a bidding process. तो एक bidding process होता है. इस bidding process में 10 कॉन्ट्रैक्टर में से एक कॉन्ट्रैक्टर चुन लिया गया. तो अब उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट of 1872, all contracts are agreement, but all agreements are not contracts. अब ये क्या बात हुई, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक एग्रीमेंट है. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एन एग्रीमेंट? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? सो इट इज an agreement signed between two or more bodies, two or more parties, where the parties agree to all terms and conditions mentioned in the agreement and the terms and conditions must follow the law of country. Now this statement is really very important. क्या लिखा है कि वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस किसको फॉलो करने चाहिए? लॉ ऑफ द कंट्री. ठीक है, जिस कंट्री में रह के वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है उस कंट्री के सारे लॉज हमें फॉलो करने हैं, तब जाकर वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. एक रैंडम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक रैंडम एग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है लीगली फिजिबल ना हो या लीगली अलाउड ना हो. लेकिन अगर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लीगल लॉज को मद्देनजर रखते हुए लिखा जाए तो फिर उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. तो यही 1872 का जो एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे, दे मस्ट फॉलो द लीगैलिटीज, दे मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ द कंट्री. राइट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में यही एक कह सकते हैं हम डिफरेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगैलिटीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है और एग्रीमेंट में हो सकता है कुछ लीगल पॉइंट्स वायलेट हो रहे हो. राइट, तो ये हम क्या देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम देख रहे हैं. और एलिजिबिलिटी का कॉन्ट्रैक्टर समझ में आ गया आपको, एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर समझ में आ गया, टेंडर क्या होता है ये समझ में आ गया. अभी हम धीरे धीरे और भी बात करेंगे, पहले यहां तक नोट करो.
Okay. So what is the tender document? What is tender document? It is an official document available in the official website of the company that carries informations about the tender such as design, drawing, date of opening and closing the tender, tender budget, expected duration, earnest money deposit, security deposit, etc. So the tender document is also available physically in the office of the company. This document is paid to keep non-interested contractors away. Okay, so a nominal cost is placed for the tender document so that the non-interested and non-eligible contractors they can be filtered away. Okay, तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मजे लेने के लिए आपको टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड आप नहीं कर सकते, आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड है तो आप वो डॉक्यूमेंट के लिए पे करोगे. तो इसमें सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कि ये टेंडर कब ओपन होने वाला है, डेट ऑफ ओपनिंग क्या है टेंडर का, डेट ऑफ क्लोजिंग क्या है, डिज़ाइन, ड्राइंग, बजट क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगा. कितना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा. तो ये अर्नेस्ट मनी क्या होता है ये हम समझेंगे अभी. तो टेंडर डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ चुका होगा. नाउ व्हाट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट? व्हाट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट? तो देखो ये एक अमाउंट है जो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो अपने आप को एलिजिबल मानते हैं वो ये अमाउंट पे करेंगे, राइट. तो ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कितना होता है? EMD जो है वो लगभग 1 से 3% होता है ऑफ द प्रोजेक्ट.
तो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उसका 1 से 3% अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है. दिस अमाउंट is deposited by the contractors to the company to participate in the bidding process. क्या है? To participate in the bidding process. To participate in the bidding process. After bidding process is over, this money is refunded back to contractors. Returned back to non-successful contractors. तो non-successful contractors को ये रिटर्न कर दिया जाता है. तो क्या सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर्स को ये अमाउंट रिफंड नहीं होता? होता है. सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर्स को ये अमाउंट रिफंड हो जाता है, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो बताऊंगा मैं आपको. अभी क्या लिखा है? दिस अमाउंट इज डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू द कंपनी टू पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस. आफ्टर द बिडिंग प्रोसेस इज ओवर, दिस मनी इज रिफंडेड बैक टू नॉन सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर्स. अब यहां पर एक पॉइंट ये है कि इट इज अ नो इंटरेस्ट सम. No interest is paid on this deposit. कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा. ये जो EMD है ये जनरली कितना है? 1 से 3% है. ठीक है. अब ये अमाउंट जो है, जो सक्सेसफुल बिडर है, जो सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर है, उसे वापस हो जाता है. When does the successful contractor gets earnest deposit money? When does the successful contractor gets earnest money deposit? The successful contractor needs to deposit the security deposit sum that is around 10% of project cost. That is around 10% of project cost, after which EMD is refunded back to successful contractor. ठीक है. तो जो सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि उसे ये काम करने का प्रोजेक्ट मतलब अथॉरिटी मिल चुका है, तो अब उस सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर से पहले सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाया जाएगा, उसके बाद अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रिफंड किया जाएगा. कई जगह पे ये अमाउंट एडजस्ट भी हो जाता है. कई जगह पे ये अमाउंट जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है
ये एडजस्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द अदर स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो। तो इसको नोट करते जाओ फटाफट फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्रीमेंट में लीगैलिटीज या लॉ ऑफ द कंट्री के को हमेशा फॉलो नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जो लॉ ऑफ द कंट्री को फॉलो करके, उसको अबाइड करके चल रहा है, तो ही उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। तो आप कह सकते हैं दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अबाइड्स द लॉ ऑफ द कंट्री एंड एग्रीमेंट मे और मे नॉट।
देखो अलग अलग क्लाइंट्स का ना, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग नॉर्म्स है, ठीक है, उनके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है। रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट्स अलग जाते हैं, कंस्ट्रक्शन कुछ प्रोजेक्ट्स अलग जाते हैं, NHAI के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं, ठीक है। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वापस आ जाता है, ये तो फिक्स है, ये तो अभी हम जनरल स्टेटमेंट कह सकते हैं कि EMD तो वापस आ ही जाता है। केवल एक कंडीशन में EMD का पैसा वापस नहीं आएगा, तो कौन सा वाला वो कंडीशन है? तो EMD का जो पैसा है ना, वो जो मजे लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो नॉन एलिजिबल थे उनको वापस नहीं मिलेगा। जो मजे लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, नॉन एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको वापस नहीं मिलेगा। EMD मैं लिख देता हूं यहां पर, EMD will not be refunded to non-eligible contractors। जो एलिजिबल नहीं थे फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया प्रोसेस में, उनको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। तो ये एक पॉइंट नोट कर लो, विल नॉट बी रिफंडेड टू नॉन एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर्स। अब सवाल यह है कि वाई सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी अमाउंट इज डिपॉजिटेड, इसको क्यों डिपॉजिट करवाया जाता है? वाई सिक्योरिटी अमाउंट इज डिपॉजिटेड? तो इसका आंसर है टू कंपनसेट any liquidate damages during the project or damages due to violation of terms and conditions, violation of terms and conditions by contractors, to compensate any liquidated damages during the project or damages due to violation of terms and conditions by contractors, for example, contractor unable to complete project on time, so penalties may be deducted from security deposit। ठीक है, तो मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर रहा है, उसने टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया, उसमें मेंशन था कि भाई प्रोजेक्ट आपको फलाने तारीख तक खत्म करना है, तो उस तारीख तक वो खत्म नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है, तो उस केस में जो पेनाल्टीज हैं वो अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा, किससे? सिक्योरिटी अमाउंट से, राइट। तो ये भी स्लाइड नोट करो, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोला ये 10% होता है। अब आपका ये सवाल होगा कि सर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कब करते हैं? ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हम जमा कब करते हैं? व्हेन? तो व्हेन दिस सिक्योरिटी अमाउंट इज डिपॉजिटेड,
when security amount is deposited. तो इसका जवाब क्या है कि भाई just before signing the contract, before signing the contract between client and successful contractor. Before signing the contract between client and successful contractor, जो security amount है वो deposit हो जाना चाहिए. Security amount must be deposited before signing the contract. Security amount must be deposited before signing the contract between client and successful contractor. ठीक है, तो सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट हो जाना चाहिए. ठीक है, कई बार क्या होता है कि बैंक गारंटी इशू करता है. जैसे मान लो कि आपके पास आप सक्सेसफुल बिडर हैं, सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर है और ये है बैंक. दिस इज द बैंक. ठीक है, अब मान लेते हैं, एक रैंडम फिगर ले रहा हूं, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है. प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट है. अब प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 1 CR. कॉन्ट्रैक्टर का, अरे कॉन्ट्रैक्टर का बैंक अकाउंट इस बैंक में है. कॉन्ट्रैक्टर्स बैंक अकाउंट बिलोंग्स टू दिस बैंक. राइट, अब कॉन्ट्रैक्टर का मान लेते हैं 50 लाख रुपए इस बैंक में डिपॉजिटेड है. डिपॉजिटेड इन द बैंक. तो क्या होता है कि मान लो 50 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर का एक बैंक में डिपॉजिट है, तो 1 करोड़ का 10% कितना होगा? 1 करोड़ का 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए. तो ये 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है. तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, इस बैंक से एक, कहते हैं, बैंक गारंटी इशू करवा लेगा 10 लाख रुपए का. तो इस 50 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए का एक बैंक गारंटी बन जाता है. ठीक है, एक बैंक गारंटी बन जाता है, इसको बोलते हैं बीजी. बैंक गारंटी बन जाएगा. ये बैंक गारंटी कितने का है? ये बैंक गारंटी कितने का है? 10 लाख रुपए का. यानी कि इस 50 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए फ्रीज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर कैन ओनली विड्रॉ 40 lakh rupees out of 50 lakh deposited amount. In his bank. अब क्या होगा कि ये 10 लाख रुपए के बदले क्या बन गया है? एक बैंक गारंटी बन गया है. ये बैंक गारंटी वहां पर जमा करना पड़ेगा क्लाइंट के पास.
तो अब अगर मान के चलो कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होता है जहां पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट होता है या टाइम पर काम कंप्लीट नहीं होता और कुछ पेनाल्टी क्लाइंट को अगर विड्रॉ करना है, तो क्लाइंट क्या करेगा, ये बैंक गारंटी इस बैंक में दिखाएगा और उस अमाउंट का मतलब ये जो बैंक गारंटी है, बैंक गारंटी 10 लाख रुपए का बना हुआ है, तो वो जो क्लाइंट है वो 10 लाख रुपए इस बैंक से विड्रॉ कर सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के पास 50 लाख रुपए तो हैं और वो बैंक में जमा है, लेकिन उस 50 लाख रुपए में से वो 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। 10 लाख रुपए वो फ्रीज हो चुके हैं, वो उसके पास भी नहीं है, वो सामने वाले क्लाइंट के पास भी नहीं है, वो है किसके पास, बैंक के पास है। तो बैंक यहां पर क्या करती है, ये एक थर्ड पार्टी होती है, वो इन दोनों के बीच में एक जस्टिफिकेशन रखती है। तो बैंक गारंटी के रूप में एक अथॉरिटी लेटर इशू होता है, जिस लेटर को वो क्लाइंट को जमा कर देता है। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि अगर कोई दिक्कत ऐसी आती है तो आप ये बैंक गारंटी रखिए। इसकी वैल्यू कितनी, इसका वर्थ कितना है, इसका वर्थ है 10 लाख रुपए। अगर मैं 1 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रहा हूं तो उसका 10% लगभग मैं एसडी मान रहा हूं, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट मान रहा हूं। तो 10 लाख रुपए ऐसे क्लाइंट को जमा नहीं करने होते हैं, क्लाइंट के पास देना नहीं होता, वो बैंक गारंटी है। वो बैंक यहां पर एक बन जाता है थर्ड पार्टी, जो कि एक वैलिडेटेड एविडेंस है कि हाँ आपने ये 10 लाख रुपए कहाँ जमा करवाए हैं, इस क्लाइंट को जमा करवाए हैं और उस क्लाइंट को, क्लाइंट के पास नहीं है, वो हमारे पास रखें। जब भी अगर पेनाल्टी सिचुएशन होता है तो क्लाइंट आके इसको इनकैश करवा सकता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक गारंटी का क्या कॉन्सेप्ट है। 10 से 15% होता है जनरली, ऐसा रिजिड नहीं है कि 10% ही होगा, मैंने ऐसा एज्यूम किया है 10%। लगभग सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 से 15% जाता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू।
अभी क्या पूछ रहे हैं? कंपनसेट कहाँ लिखा है? कंपनसेट एनी लिक्विडेटेड होता है, लिक्विडेटेड damages during the project or damages due to violation of terms and conditions by contractors. ये लिख लिया होगा, ये वाला भी हो गया होगा. देखो एलिजिबिलिटी जो है ना, जैसे आपका सवाल है कि सर कौन कौन सी, कैसे पता चलता है कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल है कि नहीं. तो देखो क्लाइंट कुछ पैरामीटर्स को देखता है, ठीक है. जैसे क्लाइंट, जैसे पास्ट एक्सपीरियंस हो गया कि सिमिलर प्रोजेक्ट पे काम करने का एक्सपीरियंस है कि नहीं, ठीक है. प्लस किस बजट पे काम किया है, स्केल ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है. जैसे मान के चलो कोई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो क्या 100 करोड़ का प्रोजेक्ट इससे पहले आपने कभी किया है, तो वो एक क्राइटेरिया हो सकता है. टेक्निकल फिजिबिलिटी हो सकती है, टेक्निकल क्राइटेरिया हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया हो सकता है कि भाई वो कंपनी, ठीक है, जिसके पास लगभग 3 साल या 5 साल का ITR हो, वो कंपनी इसके लिए फाइट कर सकती है, इस प्रोजेक्ट के लिए, इस टेंडर के लिए. तो अब फाइनेंशियल क्राइटेरिया आ गया कि भाई 5 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, लगातार 5 साल का ITR जमा होना चाहिए, ठीक है. तो ये फाइनेंशियल क्राइटेरिया हो गया, टेक्निकल क्राइटेरिया हो गया. तो इन सब अलग अलग क्राइटेरियाज के बेस पे एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है, राइट. चलो आपने लिख लिया होगा. आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे पास 2 तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है. टर्न की कॉन्ट्रैक्ट और नॉन टर्न की कॉन्ट्रैक्ट. तो देखो जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेगा वैल्यू के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें हम टर्न की कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास क्लाइंट है जिसको ये काम करवाना है और कॉन्ट्रैक्टर है. तो क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट विल propose the objectives and goals of project कि भाई हमें ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए. जैसे मान लो कि एक क्लाइंट है, उसके पास 100 एकड़ की ज़मीन है. अब उसने कह दिया कि 100 एकड़ की ज़मीन पे मुझे बहुत बड़ी सोसाइटी बिल्ड करवानी है. अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपने हिसाब से प्लान करेगा पूरे प्रोजेक्ट को. क्लाइंट ने केवल बता दिया कि ये 100 करोड़ की ज़मीन है, इसमें पूरी की पूरी आपको अपार्टमेंट्स या बिल्डिंग्स या एक सोसाइटी बना के देनी है, बहुत बड़ी सोसाइटी बना के देनी है. उसमें अंदर कुछ आप गेमिंग भी रखना, कुछ आप मॉल भी रखना, ये सब कुछ आपने अपने डिजायर्स और ऑब्जेक्टिव्स अपने बता दिए. किससे? कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया. तो कंप्लीट प्लानिंग कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व्स कंप्लीट प्लानिंग. कंप्लीट प्लानिंग of execution is done by the contractor.
contractor and the project is handed over to client only when the project is complete. ठीक है, तो इसका नाम क्या है? टर्न की, मतलब लास्ट में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट को पूरा राइट मिल जाएगा प्रोजेक्ट का। वो क्या करेगा? चाबी लेगा और ताला खोलेगा। सिंपल। उसका क्लाइंट का काम केवल इतना होगा कि ठीक है, हो गया सारा काम सर, ये लीजिए, आज से आपका ये पूरा प्रोजेक्ट डन हो गया, ये लीजिए चाबी और ये ताले को खोलिए। टर्न द की, दैट्स इट। क्लाइंट का कोई भी यहां पर प्लानिंग में रोल नहीं है। क्लाइंट ने केवल प्रपोज क्या किया? अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को प्रपोज किया। किसके सामने? कॉन्ट्रैक्टर के सामने। कॉन्ट्रैक्टर क्या है? वो पूरी की पूरी प्लानिंग खुद से करता है, पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन खुद से करता है, और लास्ट में जब प्रोजेक्ट हो जाता है कंप्लीट तो वो हैंड ओवर कर देता है क्लाइंट को। दैट्स इट। तो जितने भी मेगा वैल्यू प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो किससे होते हैं? टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स। मेगा वैल्यू एंड बिगर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको टर्न की कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? टर्न की कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया सबको? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले बता चुका हूं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीमेंट। तो अब टर्न की के बाद क्या बचता है? टर्न की के बाद बचता है नॉन टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। नॉन टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। तो नॉन टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसमें जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट हैज सफिशिएंट नॉलेज and skill. So client carries sufficient knowledge and skill, experience to plan the project and contractor does not have complete authority. यहां पर कॉन्ट्रैक्टर के पास कंप्लीट अथॉरिटी नहीं होता है। तो नॉन टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं? टाइप ऑफ नॉन टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स।
पहला होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, फिर परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, इसे कह सकते हैं परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, और लमसम वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। समझो, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये पूरा प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट में इसका रेट फिक्स है 1 CR, इसका रेट है 4 CR, इसका रेट है 7 CR, इसका रेट है 21 CR, इसका रेट है 5 CR। ठीक है, इस तरीके से रेट बना हुआ है अलग अलग सेगमेंट्स में। अब आपको ये वाला पार्ट मिला है करने के लिए जिसकी वैल्यू है 10 CR। तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 10, 5 15, 2 17, 24, 4 28, इसको 2 कर दो, 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें से आपको कौन सा वाला पार्ट मिलता है, कौन सा वाला आइटम आपको एग्जीक्यूट करने का अथॉरिटी मिलता है, तो आप इस पोर्शन को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको इसका पैसा मिलेगा 10 CR। ठीक है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंप्लीट अथॉरिटी आपके पास पूरे प्रोजेक्ट की नहीं है। आपको क्या है कि आइटम बाय आइटम कॉस्ट स्पेसिफाइड है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर आप ये वाला काम करते हो तो इसकी जो वैल्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 2 करोड़ की, इसी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 4 करोड़ की है, इसी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 21 करोड़ की है। तो ये क्या है, आइटम बाय आइटम कॉस्ट स्पेसिफाइड है, राइट। पूरी प्लानिंग कौन करता है, पूरी प्लानिंग करता है क्लाइंट। क्लाइंट के पास यहां पर सफिशिएंट नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस सब कुछ है, वो खुद से प्लानिंग कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्टर को ये बताएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। यहां पर कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से प्लान नहीं कर रहा है, यहां पर कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट बताएगा कि आपको यही करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसी स्पेसिफिक काम को करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा, राइट। अच्छा, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि पूरे प्रोजेक्ट का एक परसेंटेज डिसाइड हो जाता है कि ठीक है आपको ये XYZ काम करने हैं और आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पूरे प्रोजेक्ट का 10% या 20% मिलेगा, तो ये हो गया परसेंटेज। तीसरा क्या है, एक लमसम वैल्यू मिल जाता है कि ठीक है 30 लाख आपको हम देंगे और उसमें ये अल्फा बीटा गामा XYZ ये 6 काम करने हैं। तो इसमें क्या होगा, एक लमसम वैल्यू डिसाइड हो गई। अब वो किस रेट से क्लाइंट ने दिया है, क्या नहीं दिया है, उसका ब्रेकअप नहीं पता है, लेकिन एक लमसम वैल्यू कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है कि ठीक है आपको ये फलाने 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 काम करने हैं और टोटल आपको 5 करोड़ रुपए मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है ठीक है हम ये सब काम कर लेंगे, इसके एवज में मुझे आप 5 CR दे देना, ये लमसम वैल्यू है। अब ये किस परसेंटेज में आया है, किस 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 आइटम का क्या क्या कॉस्ट जोड़ा गया है, ये ब्रेकअप अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये 3 तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या तो परसेंटेज पे काम करवाएगा क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को, या तो कोई एक सेगमेंट डिसाइड करके दे देगा कि आपको ये वाला पोर्शन करना है, तो वो हो गया आपका आइटम रेट, और या तो तीसरा एक लमसम वैल्यू पकड़ा देगा और उसके बाद बोलेगा कि आपको ये सब सर्विस देनी है। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नॉन टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत बड़े कंपनीज के लिए नहीं होता, ये थोड़ा लिटिल स्मॉल कंपनीज के लिए जो कि खुद से प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर रही है या ध्यान दे रही है, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन जो बड़े कंपनीज हैं, लार्ज मेगा वैल्यूज के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर इन दोनों में एक आप कह सकते हैं कि क्लाइंट पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से पूरा का पूरा काम करता है, क्लाइंट डे टू डे ऑपरेशंस में वहां पर इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करता, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि टर्न की और नॉन टर्न की में क्या डिफरेंस है।
चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक बार आप देख लो टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे से। देखो टेंडर क्या होता है? इट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल इन्विटेशन फॉर वर्क और टास्क टू ऑल द एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर्स पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑफिशियल वेबसाइट एक्सेट्रा। Now, who are eligible contractors? Contractors who fulfill eligibility criteria as per terms and conditions mentioned in the tender document. Now, according to Indian Contract Act of 1872, 1872, याद रखना है, all contracts are agreement, but all agreements are not contracts. So, what is the difference between contract and agreement? It is an agreement. What is a contract? It is an agreement signed between two or more parties where the parties agree to follow or they agree in all terms and conditions mentioned in the agreement, and the terms and conditions must follow the law of the country, right? तो लीगल क्राइटेरिया, लीगल एलिजिबिलिटी वहां पर होनी चाहिए। व्हाट इज टेंडर डॉक्यूमेंट? उसमें सारे स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, डिजाइन, ड्राइंग, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, डेट ऑफ ओपनिंग, डेट ऑफ क्लोजिंग, बजट, और आपका कितना ईएमडी है, कितना एसडी है, ये सब वहां पर मेंशन रहेगा। ईएमडी कितना होता है बेटा? 1 से 3% होता है, ठीक है। ये बाद में रिफंड हो जाता है। जो नॉन एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको रिफंड नहीं मिलता, बाकी सबको रिफंड मिल जाता है, ठीक है। जो सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको मिल जाता है, ठीक है, पैसा वापस, लेकिन वो तब मिलता है जब सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर देते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा क्यों करवाया जाता है? ताकि कोई भी पेनल्टी अगर हमें डिडक्ट करना हो तो हम उस अमाउंट से डिडक्ट करवा सके। सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक गारंटी के रूप में भी जमा हो जाता है क्लाइंट के पास, वही यहां पर मेंशन्ड है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या होता है? टर्न की और नॉन टर्न की, ठीक है। टर्न की में क्या होता है? पूरा का पूरा कार्यभार कॉन्ट्रैक्टर के हाथों होता है, और नॉन टर्न की में क्या होता है कि क्लाइंट खुद से प्लानिंग करता है और कॉन्ट्रैक्टर को कमांड देता है कि आपको ये वाला काम करना है, राइट। तो नॉन टर्न की में भी 3 बातें हैं, आइटम रेट, परसेंटेज रेट और लमसम वैल्यू। चलो अब यहां से बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन, एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज इनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट्स बिटवीन 2 और मोर पार्टीज इनफोर्सेबल by law. Option A, tender, B, MOU, C, contract, LOI। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और LOI का मतलब होता है लेटर ऑफ इंटेंट। Question number 2, the Indian Contract Act was enacted in, the Indian Contract Act was enacted in, option A 1947, 1971, 1872, 1991। Question number 3, in a turnkey contract, responsibility of project execution, responsibility of project execution is entrusted to the contractor in a partial manner, is entrusted to the contractor in a partial manner। Second statement, the contractor takes care of few aspects of project execution,
द कॉन्ट्रैक्टर टेक्स केयर ऑफ few aspects of project execution in a turnkey contract. तो अब जवाब दो फटाफट फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 1872, और यहाँ पर आपको पता ही है ऑप्शन A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ और D नन। तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन अ टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इज एंट्रस्टेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इन अ पार्शियल मैनर। पार्शियल मैनर में कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर अथॉरिटी लेता है पार्शियल मैनर में, ऐसा नहीं है टर्नकी में पूरा का पूरा कार्यभार कॉन्ट्रैक्टर के हाथों होता है। द कॉन्ट्रैक्टर टेक्स केयर ऑफ फ्यू एस्पेक्ट्स, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2, डी नन, दिस इज द आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है द EMD अमाउंट वेरीज फ्रॉम 1 to 3%। EMD वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 to 3% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। फिर लिखा है EMD is a mandatory deposit and it is not given back to any of the tenderer. Is a mandatory deposit and is not given back to any tenderer. तो ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ एंड D नन। फिफ्थ क्वेश्चन, security deposit is about 2% of total value of the contract. Security deposit is about 2% of contract value. Security deposit will be forfeited fully or partially, will be forfeited fully or partially in case the contractor fails to fulfill any of the terms of contract. In case the contractor fails to fulfill terms of contract, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, सिक्योरिटी डिपॉजिट से पहले EMD वाला क्वेश्चन करते हैं। EMD वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 to 3%, सही बात है। EMD इज अ मैंडेटरी डिपॉजिट एंड इज नॉट गिवन बैक, ये गलत बात हो गई, नॉट गिवन बैक ऐसा नहीं होता, वापस मिलता है, तो 1 ओनली इज करेक्ट।
फिर क्वेश्चन नंबर 5, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अबाउट 2% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, इट इज अबाउट 2% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, बिल्कुल गलत बात है। एसडी सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 से 15% होता है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शंस तो वही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें पहला वाला तो गलत है। लिखा है एसडी विल बी फोरफिटेड फुली और पार्शियली इन केस द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू फुलफिल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बिल्कुल सही बात है, 2 ओनली इज करेक्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है द टेंडरर हु हैज कोटेड द लोएस्ट अमाउंट इज अलॉटेड द कॉन्ट्रैक्ट जनरली। द टेंडरर has quoted the lowest amount who has quoted the lowest amount is allotted the contract generally, is allotted the contract generally। तो लिखा है कि जो टेंडर, द टेंडरर जो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट कोट करता है उसको जनरली कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। दूसरा, अ टेंडर अदर देन लोएस्ट कॉस्ट, अ टेंडर अदर देन लोएस्ट कॉस्ट कैन नेवर बी एक्सेप्टेड। अ टेंडर अदर देन lowest cost can never be accepted। तो अब ये 2 पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका जवाब दो। ठीक है, देखो L1 कॉन्ट्रैक्टर, L1 कॉन्ट्रैक्टर एक टर्म होता है L1, L1 कॉन्ट्रैक्टर मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने लोएस्ट कॉस्ट बिड किया हो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो जनरली ऐसा होता था। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ चेंज लाया है, उसने कहा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इट इज स्टेटेड कि भाई केवल कॉस्ट को ही आप क्राइटेरिया नहीं बना सकते एक्सेप्टेंस का, आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी और क्वालिटी फिजिबिलिटी दोनों ही चेक करने हैं। तो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी चेक करने होंगे अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट, राइट। तो लेकिन अगर यहां पर जनरली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो जनरली वर्ड का इस्तेमाल यहां पर सही होगा, क्योंकि जो L1 कॉन्ट्रैक्ट्स है, L1 कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब जो लोएस्ट कॉस्ट बिड करेगा। यहां पर L का मतलब होता है, यहां पर L का मतलब होता है लोएस्ट कॉस्ट। यहां पर L1 कॉन्ट्रैक्ट्स, L1 कॉन्ट्रैक्टर, तो L का मतलब यहां पर होता है लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो जो जिसने सबसे कम कॉस्ट कोट किया है उसको टेंडर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है, आमतौर पे सही है। लेकिन यहां लिखा है टेंडर अदर देन लोएस्ट कॉस्ट कैन नेवर बी एक्सेप्टेड, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने ज़्यादा दाम कोट किया है लेकिन उनकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं, राइट, जो कि चाहिए। और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कॉस्ट तो काफ़ी कम कोट किया है लेकिन उसके टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहे, तो हो सकता है उसको प्रोजेक्ट ना मिले। तो ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ही रिजिड स्टेटमेंट है, इसलिए ये गलत हो गया। तो यहां पर हमारा आंसर जो है दैट विल बी 1 ओनली, राइट।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कल आपकी क्लास 2 बजे रखी गई है, 2 o'clock टुमारो। कल आपकी क्लास 2 बजे रखी गई है, 2 PM। Tomorrow's class will be at 2 PM. दो बजे है आपकी क्लास। Tomorrow. टू PM से 5:30। 2 से 5:30 PM। एंजॉय करो। कल नहीं होगा, परसों होगा सब्जेक्ट कंप्लीट। परसों करेंगे सब्जेक्ट को कंप्लीट। कल की क्लास और फिर परसों की क्लास, परसों भी 3-4 घंटे चाहिए होंगे तो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है कि नहीं, शायद नहीं है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर मैं सबको दे रहा हूँ। कोई भी डाउट वगैरह है तो आप लोग डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ओके, हरे कृष्णा, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। ठीक से तैयारी करो, और कोई डाउट वगैरह है तो पोस्ट कर देना, और टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैलेंस करके चलो, ठीक है। जितना अभी नॉन टेक्निकल में क्लास में हो रहा है बस, इसके अलावा और दिमाग मत लगाओ। हर दिन हम 1-2 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। कल एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, परसों एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चंस भी हम क्लास में ही कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एक्स्ट्रा स्टडी। तो जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। चलो आराम से घर जाओ, घर पे ही हो इनफैक्ट, आराम से रिलैक्स करो।